Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र. सो वी वर रीडिंग अबाउट साइमन कमीशन. ठीक है, लास्ट लेक्चर में अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या थे मैं बता रहा हूँ. साइमन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से यूपीएससी में कंटिन्यूस पूछा जा चुका है, बार बार स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है. हमने इसको 3 स्टार मार्क किया हुआ है. ठीक है, तो इसको आप साइमन कमीशन के पूरे पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो साइमन कमीशन पब्लिश्ड अ 2-volume रिपोर्ट इन May 1930. रिपोर्ट पब्लिश करी गई है. ठीक है, रिपोर्ट में क्या था? इट प्रपोज द अबॉलिशन ऑफ डायरार्की पहले तो एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस व्हिच शुड बी गिवन ऑटोनॉमी. It said that the governor should have discretionary power in relation. Governor के पास discretionary power in relation to the internal security administrative powers to protect the different communities. The number of members of provincial legislative assembly, देखिए हमेशा मैं बोल रहा था इंक्रीज ही होती है हर जगह, अब इंक्रीज ही होती जाएगी. ठीक है, नंबर ऑफ members of the provincial legislative council है ना should be increased. The report rejected parliamentary responsibility at the center. And the governor general was to have a complete power to appoint the members of the cabinet. Complete power to appoint members of the cabinet and the government of India would have complete control over the high court. Government of India का पूरा complete control होगा high courts पे. It also, ये recommendations है भाई, माननी गई हैं अभी. ठीक है ना. It also recommended that the separate communal electorate to be retained and extended भी किया था such electorate to other communities but only until tensions between Hindu and Muslim have died down. There was to be no universal franchise. भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही सब पूछे गए हुए हैं. ठीक है ना, जो ऊपर बताया मैंने. तो इंपॉर्टेंट भाई देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट को रखा गया, उसको बढ़ाया भी गया. उसके बाद नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बोला गया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं देंगे आपको किसी. इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन द नियर फ्यूचर. इट सजेस्टेड दैट कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया शुड बी एस्टेब्लिश्ड which should include representatives of both British provinces as well as the princely states. It suggested that the Northwest Frontier Province and the Balochistan should get local legislature, and both Northwest Frontier Province and Balochistan should have the right to be represented at the center. It recommended the Sindh should be separated from the Bombay. Sindh should be separated from Bombay and Burma should be separated from India itself because it was not a natural part of Indian subcontinent. It also, ये साइमन कमीशन में बोला गया था. तो आज का देख रहे हैं आप, म्यांमार अलग है कि नहीं. It also suggested that the Indian army should be indigenized, though British forces must be retained. India got fully equipped, है ना. But by the time the report came out, it was no longer relevant because several events overtook the importance of the recommendation. ठीक है, मैं बोला था ये सब रिकमेंडेशन है, आना कुछ नहीं गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि यूपीएससी में ही मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है. ठीक है ना, तो इसको आप डबल स्टार्ट करके यूपीएससी में पूछा गया, स्टेट पीएससी में पूछा गया होगा कभी ना कभी. तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए और पढ़िए. As the answer to Lord Birkenhead challenge on an all-party conference met. The all-party conference कहाँ पे met in February 1920 and appointed subcommittee under the chairmanship of मोतीलाल नेहरू to draft a constitution. ने बोला था ना कि आप खुद को ड्राफ्ट तो कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमको साइमन कमीशन लानी पड़ रही है. ठीक है, इंडियन लीडर्स ने इसको चैलेंज लिया और मोतीलाल नेहरू के अंदर एक चेयरमैनशिप के अंदर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कमिटी बना के. ठीक है, पढ़िए. This was the first major attempt by the Indian to draft a constitutional framework for the country. The committee included Tej Bahadur Sapru, Subhash Chandra Bose, M.S.N.E., Bangal Singh, Ali Imam, Shoaib Qureshi, G.R. Pradhan as its member. ये मेंबर थे, इसके अंदर मोतीलाल नेहरू के अंदर थे. The report was finalized by August 1928. It recommended the Nehru committee were unanimous except in one respect. देखिए, the recommendations of the Nehru committee were unanimous except in one respect. While the majority favored the dominion status on the basis of constitution, a section of it wanted complete independence on the basis with the majority sections giving the later sections of liberty of action. ठीक है, कुछ बोल रहे थे भाई डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट कर लेते मेजॉरिटी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे नहीं अब तो पूरा इंडिपेंडेंस ही चाहिए.
ठीक है। तो मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थी भाई, देख लो भाई। ये रिकमेंडेशंस के बारे में भी स्टेट पीएससी वगैरह में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। द नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू ब्रिटिश इंडिया एज इट एनविसाज द फ्यूचर लिंकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑन फेडरल बेसिस। फॉर द डोमिनियन इट रिकमेंडेड, डोमिनियन के लिए रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस इन द लाइन्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस एज form of government desired by Indians, much to the chagrin of younger militant section, Nehru being prominent among them. Rejection of separate electorate, भाई separate electorate कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब unity बना के रखो. Rejection of separate electorate which had been the basis of the constitutional reform so far, instead the demand of joint electorate with the reservation of seat to the Muslim at the center. ये बोला था separate electorate और joint electorate लेके आओ. And in the provinces, center और province दोनों में, where they were in minority, है ना, वहीं पर लेके आएंगे प्रोविंसेस में जहाँ माइनॉरिटी, सेंटर में तो लेके आएंगे बट प्रोविंसेस में कहाँ पे, जहाँ वेयर दे वर इन माइनॉरिटी एंड नॉट इन दोज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी एंड सच एज पंजाब एंड बंगाल। यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको प्रोविंसेस में, क्योंकि आप तो यहाँ पे मेजॉरिटी में ही हो ना, तो उसके लिए अलग से क्यों चाहिए जॉइंट इलेक्टोरेट। इन प्रपोर्शन टू द मुस्लिम पॉपुलेशन देयर विद द राइट टू कंटेस्ट एडिशनल सीट्स। फिर क्या है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस लेके आओ। 19 फंडामेंटल राइट्स बोले थे, तो पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात कहाँ करी गई थी भाई, नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भाई, बहुत प्रीलिम्स के हिसाब से। फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में, इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस, राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनिवर्सल एंड सफरेज, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस। उसके पार्ट क्या है कि द इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर ऑफ टू कंसिस्ट ऑफ 500 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, 200 members Senate to be elected by provincial councils, the House of Representative to have tenure of 5 years, Senate to have tenure of 1 of 7 years. The central government to be headed by the governor. उसके पहले क्या था भाई, उसके पहले ये था कि 5 साल और 3 साल का, ठीक है ना। अब ये बोला 5 साल 7 साल ले गया। The central government to be headed by the governor general appointed by the British government but paid out of Indian revenues. ये थोड़ा सा आप देखिए, है ना, थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय गवर्नर जनरल, ठीक, गवर्नर जनरल हेड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। पहले क्या बोला था, इसके पहले चेंज भी कर दिया था कि भाई इंडिया से पे मत करवाओ, आप अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल को आप खुद पे करो, ठीक है ना। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से आप पे कर सकते हो। हु वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इसलिए क्योंकि भाई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल रहेगा गवर्नर जनरल, जो कि ऑफकोर्स ब्रिटिश नहीं चाहेंगे, ठीक है, उनको तो फुल ऑटोनॉमी चाहिए अपने हाथ में। तो बी क्या है, प्रोविंशियल काउंसिल टू हैव अ 5-year टेन्योर। प्रोविंशियल काउंसिल क्या होगी, 5-year टेन्योर, हेडेड बाय द गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो ऊपर पढ़ा अपन ने। फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, कंप्लीट वे फॉरवर्ड ही है भाई, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। आप नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है, रिलीजन वाइज। अब मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्स, दो the process of drafting a constitutional framework was begun enthusiastically and unitedly by political leaders. Communal differences crept in and the Nehru report got involved in controversies over the issue of communal representation. दिल्ली proposal of Muslim League, अब जैसे नेहरू रिपोर्ट आई जो कांग्रेस ने प्रपोज करी थी, अब दिल्ली प्रपोजल लेके आया मुस्लिम लीग, ठीक है, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली प्लान नहीं, दिल्ली प्रपोजल, याद रखेंगे। Earlier in December 1927 a large number of Muslim leaders had met in Delhi at the Muslim League session and evolved 4 proposals for their demands to be incorporated into the draft constitution. These proposals which were accepted by the Madras session of the Congress, देखिए 1927 में मुस्लिम लीडर साथ मिले, ठीक है, प्रपोजल लेके आए कि भाई हमको इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो नेहरू रिपोर्ट ने डाला है वो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करवानी है। दिस प्रपोजल विच वर एक्सेप्टेड बाय मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, दिस प्रपोजल्स विच वर केम टू बी नोन एज दिल्ली प्रपोजल्स, जो एक्सेप्ट कर लिए गए थे, ठीक है। तो पहले क्या एक्सेप्ट किया था, जॉइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स ने मान लिया। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल में हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए। रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्या थे, मेजोरिटी में थे। फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है ना। ये इनके डिमांड्स थे। हिंदू महासभा डिमांड क्या करी फिर भाई, देखिए सब पूछा जा चुका है, स्टेट पीएससी वगैरह में पूछ लेते कई बार। हिंदू महासभा छत्तीसगढ़ वगैरह में, अलग उत्तराखंड, हर जगह पूछेंगे ऑफकोर्स। तो हिंदू महासभा डिमांड्स क्या थी, तो हिंदू महासभा was vehemently opposed to the proposal of creating new Muslim majority provinces. हिंदू महासभा क्या की, अपोज न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। हिंदू महासभा का ये स्टैंड था, याद रखिएगा, ठीक है। विच वॉज
which would ensure Muslim control over the legislature in both, over legislatures in both. It also demanded a strict unitary structure. This attitude of Hindu Mahasabha complicated matters. Compromise क्या reach हुआ भाई? Finally क्या लिखा? In the course of the deliberations of all party conference, the Muslim League disassociated itself and stuck to its demand for reservation of seats for Muslim, especially in central legislature and Muslim majority provinces. Thus, Motilal Nehru and other leaders drafting the report would found themselves in dilemma. If the demands of the Muslim communal opinion were accepted, the Hindu communists would withdraw their support. If the latter was satisfied, the Muslim League would get strange to dilemma ban gaya. The concessions made in the Nehru report to Hindu communalist included the following: joint electorate proposed everywhere, but reservation for Muslim only where it in minority. तो ये निकल के आया था कि भाई सब जगह दे देंगे जॉइंट इलेक्टोरेट, लेकिन रिजर्वेशन से वहीं देंगे मुस्लिम को जहाँ वो माइनॉरिटी में. सिंध टू बी डिटैच्ड फ्रॉम बॉम्बे, है ना, ओनली आफ्टर डोमिनेंट स्टेटस वॉज ग्रांटेड एंड सब्जेक्ट टू वेटेज गिवन टू हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध. ठीक है. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज ब्रॉडली यूनिटरी एज रेसिडुअल पावर्स रेस्टेड इन सेंटर. ठीक है. ये यहाँ पे इस सॉल्यूशन लेके आया, इसका बोले कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. अब पढ़ते हैं आगे. अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय जिन्ना. अब आगे चल के अब जिन्ना भी बोलते हैं कि अब थोड़े से और अमेंडमेंट्स लेके आओ. ठीक है ना. ये भी अमेंडमेंट जो जिन्ना 14 पॉइंट है ना, जिन्ना 14 पॉइंट पूछा जा चुका है पहले यूपीसीएस और स्टेट पीएससीज वगैरह में. एट ऑल द पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कैलकाटा इन दिसंबर 1928 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कैलकाटा में हुई थी 1928 में. कंसीडर नेहरू रिपोर्ट जिन्ना ऑन द बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग प्रपोज 3 अमेंडमेंट्स टू द रिपोर्ट. क्या अमेंडमेंट थे? 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कि पहले भी थी. रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेटिव प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन टिल एडल्ट सफरेज वॉज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. ये भी पहली सेम डिमांड थी, बट ये बस ऐड हुआ टिल एडल्ट सफरेज वॉज एस्टैब्लिश्ड. और रेसिडुअरी पावर टू प्रोविंस, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रेसिडुअरी पावर टू हम देंगे किसको? सेंटर में. ये लिखा हुआ है स्टेट रेसिडुअरी पावर टू रेस्टेड इन सेंटर. ये बोला नहीं प्रोविंस को दो, क्योंकि अब प्रोविंस इनके हाथ में आने वाली है ना, बंगाल और पंजाब. तो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम अपने हिसाब से चलाएंगे. ठीक है. और उनको पता नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह ये सब आगे चल के बन जाएंगी मुस्लिम डोमिनेटेड, तो ये भी हमारे कंट्रोल में होगा. ऊपर से 1/3 हमारे पास है ही रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की सेंट्रल लेजिस्लेचर में, तो कोई भी बिल हम पास तो होने नहीं देंगे, क्योंकि 2/3 लगेगी आगे चल के मेजोरिटी. थोड़ा बहुत तो हम वोट्स हम इधर उधर से ले ही आएंगे. इसलिए ये थोड़ा डेडलॉक क्रिएट कर रहे थे जिन्ना. ठीक है. और मुस्लिम लीग Jinnah's 14 points. Jinnah went back to Shafi faction of the Muslim League and in March 1929 gave 14 points which were to be become the basis of all future propaganda of Muslim League. The 14 points were as follows. Federal constitution with residual power to the province. फिर से वही बताया ना, रीजन ऊपर बताया. Provincial autonomy लेके आओ. No constitutional amendment by the center. No constitutional amendment by the center without concurrence of the state consisting of Indian Federation. ठीक है. Concurrence of the states constituting the Indian Federation. All legislature and elected bodies to have adequate representation of Muslim. सबको मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए सारी बॉडीज़ में. ठीक है. इलेक्टेड बॉडीज़ में इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम इन अ प्रोविंस टू द माइनॉरिटी और इक्वल. मतलब भाई मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में, हमें तो उतना चाहिए. ठीक है ना. हम एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सर्विसेज इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज. 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर जो पहले थी. इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन द प्रोविंस 1/3 मुस्लिम्स. कोई भी कैबिनेट हो, कुछ भी हो, माइनॉरिटी में हो, मेजोरिटी में हो, हम जीते हो नहीं जीते हो, हमको चाहिए 1/3 पूरा. सेपरेट इलेक्टोरेट भी लेके आओ, है ना, कि मुस्लिम्स केवल मुस्लिम्स को ही वोट करेंगे. नो बिल और रेजोल्यूशन इन, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था. नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर्ड सच बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. मतलब अब कोई बिल पास ही नहीं होगा इनके अगेंस्ट. मतलब इनके अगेंस्ट तो हम वैसे भी नहीं करने वाला था कोई भी, लेकिन ये बोल रहे हैं अब हम ही सरकार हैं भाई. ये चाहते तो किसी भी बिल को डिफीट कर देते, मतलब किसी भी बिल को, मतलब पूरी पावर इनके हाथ में चाह रहे थे बेसिकली. कोई, आप समझ रहे हैं ना इस पॉइंट का मतलब. नो बिल और रेजोल्यूशन इन any legislature to be passed if 3/4 of the minority community considered such bill or resolution to be against their interest. मतलब इन्होंने बोला कि भाई कोई भी बिल लेके आए हो, हमें लगता है कि हमारे इंटरेस्ट में हम नहीं पास होने देंगे, चाहे पूरा सदन सपोर्ट कर रहा हो. अगर इनके जो समझ लीजिए टोटल 300 मेंबर्स हैं, 100 मुस्लिम लीग के होंगे क्योंकि 1/3 रिजर्वेशन है. ठीक है. अगर ये लोग की माने तो 1/3 है, उसमें से 3/4 यानी कि 75 मेंबर्स भी मान गए ना कि इस बिल को पास नहीं होने देना है, तो बाकी के 225 मेंबर्स भी वोट करेंगे ना कि भाई पास कर दो. तो 75 मेंबर्स ने अगर बोल कर दिया नहीं करना है तो पास नहीं होगा. आप समझ रहे क्या ही है फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट में, है ना, डेमोक्रेटिक क्या है. समझ रहे ना क्या आप समझा रहा हूँ मैं अच्छे से. ठीक है. इसको अच्छे से समझा दिया, समझिएगा आप. ठीक है. Any territorial redistribution not to affect the Muslim majority Punjab, Bengal. अब मतलब आप
कितना हिपोक्रेट थे ये लोग, मतलब लिटरली बहुत गंदा डेडलॉक क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे। सिंपल बोले थे कि भाई देखो, आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना है, आपको माइनॉरिटी मेजोरिटी में करना है, जो भी करना है करो, लेकिन हाँ अगर आप हिंदू वगैरह जो स्टेट्स वगैरह जो जिस प्रोविंस में हिंदू सेक्शन ज़्यादा है या फिर नॉन मुस्लिम सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट जहाँ पे मुस्लिम सेक्शन ज़्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी है, पंजाब बंगाल नॉर्थ वेस्ट में प्रोविंस में, वहाँ को चेंज नहीं लेके आओगे, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं थी ऐसी डिमांड्स थी। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, क्योंकि सिंध को इनको मुस्लिम प्रोविंस बनाना था क्योंकि मेजोरिटी वहाँ पे थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान, फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है, ओके। नेहरू रिपोर्ट फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए इसके वजह से, अब देखिए नेहरू रिपोर्ट, अब इतना डेडलॉक क्रिएट हो गया था नेहरू, तो ये भी ठीक है, आगे चल के बताता हूँ क्यों। तो नेहरू रिपोर्ट फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। Not only were the Muslim League, the Hindu Mahasabha, and Sikh communists unhappy about the Nehru report, but the younger section of the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, were also angered. The younger section regarded the idea of dominant status in its report as a step backward. ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। यंगर सेक्शन ने क्या बोला था कि भाई डोमिनेंट स्टेटस, अभी अगर आप इतने टाइम पे आने के बाद भी डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे हो तो हम तो पीछे ही खिसक रहे हैं, इतना तो हम ले ही सकते थे कैसे भी करके। इन द डेवलपमेंट एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस स्ट्रेंथन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द डोमिनेंट स्टेटस आइडिया, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस रिजेक्टेड द कांग्रेस मॉडिफाइड गोल एंड जॉइंटली सेट अप इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, है ना, इनने बनाई थी। किसने बनाई थी भाई? नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आप याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिया लीग फॉर इंडिपेंडेंस अलग है ना, वो आगे चल के राज बिहारी बोस वाला अलग है। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसने बनाई है, याद रखेंगे, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ये अलग है इंडियन लीग फॉर इंडिपेंडेंस वगैरह के अलग से, ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, इसकी हम पढ़ लेते हैं समरी। तो भाई समरी में क्या लिखा हुआ है? साइमन कमीशन came in 1928 to explore possibilities of further constitutional advances, boycotted by the Indians because of no Indian represented in the commission. Response of various groups, Ambedkar's memoranda, impact of Simon Commission, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। नेहरू रिपोर्ट क्या बोलती है भाई? 1928 में आई थी। फर्स्ट इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स। रिकमेंडेशन क्या था? डोमिनेंट स्टेटस लेके आओ, नो सेपरेट इलेक्टोरेट बट जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, कोई भी माइनॉरिटीज, मतलब हर माइनॉरिटी के लिए रिजर्व सीट लेके आएंगे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, जॉइंट इलेक्टोरेट में। लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाओ, 19 फंडामेंटल राइट्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सेज ऑफ वेरियस ग्रुप। फिर आगे चल के 14 पॉइंट वगैरह जन्ना वन्ना के सब पढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसके हमने PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी बता दिए, कौन कौन से सेक्शन से कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर 19 पे। चैप्टर 19 है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये चैप्टर कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है भाई प्रीलिम्स में, बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले, ठीक है, प्लस मेंस में। मेंस में भी कहाँ पे? जैसे मेंस में आपको बता देते हैं, पर्सनालिटी। देखिए यहाँ पे है ना, पर्सनालिटीज़ वगैरह डिस्कस होंगी, जैसे कि गांधी जी, अंबेडकर, बोस, टैगोर। ये जो सारी पर्सनालिटीज़ होती है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग काम तो किया ही है, मोरली भी काम किया है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, है ना, और कमिटीज़ इन सब में तो काम किया ही है। कई बार कंपैरिजन पूछ लेते हैं, जैसे गांधी जी और टैगोर का पूछ लेंगे, गांधी जी और बोस का पूछ लेंगे, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स आपको पता ही है, तो ये ध्यान रख के अपन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आया भी हुआ है क्वेश्चन, आगे आपको बताएंगे पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए भाई पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको कवर करने के लिए, ठीक है। ओके, द रन अप टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कैलकाटा सेशन, ठीक है। इट वॉज द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1928 दैट द नेहरू रिपोर्ट वॉज अप्रूव्ड। 1928 का जो 1928 में हुआ था कैलकाटा में सेशन, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट वॉज अप्रूव्ड बट द यंगर एलिमेंट्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द
dominant status as the goal of the Congress. Instead, they demanded that the Congress adopt Purna Swaraj as the complete independence as its goal. क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल बनाओ, ठीक है. द ओल्डर लीडर्स लाइक गांधी एंड मोतीलाल नेहरू विच द डोमिनेंट स्टेटस डिमांडेड फॉर नॉट dominant status demand not to be dropped in haste, as consensus over it had been developed with a great difficulty over the years. They suggested that a 2-year grace period, ये देखिए 2-year grace period be given to the government to accept the demand for a dominant status. Later, under the pressure from the younger elements, this period was reduced to 1 year. एक ईयर कर दिया reduce. Now the Congress decided that if the government did not accept a constitution based on the dominant status by the end of the year, the Congress would not only demand complete independence but would also launch a civil disobedience movement to attain their goal. ठीक है. अब पढ़ते पॉलिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग 1929. ठीक है. ये जब जो कॉन्स्पिरेसी केसेस वगैरह हो रहे थे बेसिकली, ठीक है, वो सबसे तो ऑफकोर्स स्टेट पीएससीज वगैरह में कंटिन्यूसली पूछा जाता रहता है और भी पूछा जाएगा. ठीक है. गांधी ट्रेवल्ड instantly to 1929, preparing people for direct political action, telling the youth to prepare for the fiery ordeal, helping to organize constructive work in village, and redressing specific grievances on the lines of Bardoli agitation of 1928. The Congress Working Committee organized a Foreign Cloth Boycott Committee to propagate an aggressive program of boycotting foreign clothes and public burning of the foreign cloth. Gandhi initiated the campaign in March 1929 in Calcutta. ठीक है. 1929 कलकत्ता में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया and was arrested. This was followed by the bonfires of foreign cloth all over the country. Other development which kept the political temperature high during 1929 but made conspiracy case important है bomb explosion Central Legislative Assembly by Bhagat Singh and B.K. Dutt and the coming to power of the minority Labour government led by Ramsay MacDonald in England in May, and Wedgwood Ben became the Secretary of Indian State. ये सब PYQ है भाई. PYQ पिछले ये जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह के इन्वॉल्वमेंट, बीके दत्त वगैरह का इन्वॉल्वमेंट, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, उसी में PYQ भी देख लिए हैं कि कहाँ आए थे. तो याद रखिए PYQ वाला है ये बहुत सारा. ठीक है. अब देखेंगे इरविन्स डिक्लेरेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. अक्टूबर 31 को आया था 1929 में. बिफोर द साइमन कमीशन रिपोर्ट केम आउट, द डिक्लेरेशन ऑफ द लॉर्ड इरविन वॉज मेड. इट वॉज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लेबर गवर्नमेंट. किसका? लेबर गवर्नमेंट का. ऑलवेज मोर देखिए लेबर गवर्नमेंट जो थी ऑलवेज मोर सिंपैथेटिक टू इंडियन एस्पिरेशन देन द कंजर्वेटिव्स. ठीक है. एंड कंजर्वेटिव वाइसरॉय. The purpose behind the declaration was to restore faith in the ultimate purpose of British policy. The declaration was made in form of official commune in the Indian Gazette on October 31st, 1929. It said, in a view of the doubt which had been expressed both in Great Britain and India regarding the interpretation to be placed on the intention of the British government in enacting the statute of 1919, I am authorized on the behalf of His Majesty Government to state clearly that in their judgment it is implicit in the Declaration of 1917 that the natural issue of India's constitutional process as they contemplated is attainment of dominant status. However, there was no time scale. Time scale नहीं दे रहा था, बोला dominant status देंगे, time scale नहीं बताएंगे. The dominant status promised by Irwin would not be available for a long time to come. There was in reality nothing new and revolutionary in the declaration. ठीक है. ये सब इसके बारे में आपको स्टेट पीएससी में कंटिन्यूसली पूछने मिल जाएगा भाई, कौन क्या पावर में है, मतलब. ठीक है. इरविन डिक्लेरेशन में क्या था? लॉर्ड इरविन ऑल्सो प्रॉमिस्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये पूछा जाएगा. ठीक है. लॉर्ड इरविन के डिक्लेरेशन के बाद मतलब लॉर्ड इरविन ने क्या किया? एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज बोला, प्रपोजल रखा आफ्टर द साइमन कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट्स. ठीक है. तो दिल्ली मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ेंगे भाई. ऑन अक्टूबर 2nd, 1929, a conference of prominent national leaders issued Delhi Manifesto, which put forward certain conditions for attainment of round table conference. अब देखिए conditions for attainment of round table conference को क्या बोला? दिल्ली मैनिफेस्टो. That the पहला क्या था? That the purpose of the round table conference should not be determined whether and when dominant status was to be reached out, but formulate a constitution for implementation of the dominant status. Thus acting in a constituent assembly, thus acting as a constituent assembly, and the basic principle of dominant status should be immediately accepted. That the Congress should have majority representation at the conference.
और थर्ड था देयर शुड बी अ जनरल एमनेस्टी ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। ठीक है, अब गांधी जी अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स मेट लॉर्ड इरविन in December 1929 after the viceroy had narrowly escaped a bomb was detonated, meaning to hit the train he was traveling in. They asked the viceroy for assurance that the purpose of the roundtable conference was to draft constitutional schemes of dominion status. That was not the purpose of the conference, said Irwin. Viceroy Irwin rejected the demands put forward by the Delhi Manifesto. याद रखेंगे भाई, वाइसरॉय इरविन ने पूरी रिजेक्ट कर दी थी ये दिल्ली मैनिफेस्टो की डिमांड वगैरह, कुछ नहीं मानेंगे बोला। द स्टेज फॉर कन्फ्रंटेशन वॉज टू बिगिन नाउ। अब लाहौर कांग्रेस सेशन एंड पूर्ण स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन के बारे में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, मतलब मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससी वगैरह में पूछा जा चुका है और यूपीएससी में खुद पूछा जा चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना शुरू करिए। जवाहरलाल नेहरू, हु हैड डन मोर देन एनीवन एल्स to popularize the concept of Pune Swaraj, was nominated the president of the Lahore Congress session. ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे आप। दिसंबर 1929 वाला जो लाहौर सेशन था, मेनली ड्यू टू गांधीज बैकिंग 15 out of 18 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हैड अपोज्ड नेहरू। 15 out of 18 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हैड अपोज्ड नेहरू, लेकिन गांधी जी की बैकिंग के बाद नेहरू जी को बनाई दिए गए। नेहरू वॉज चूजन बिकॉज ऑफ द apostiness of the occasion, Congress acceptance of the complete independence as its goal, and to acknowledge the upsurge of the youth which had made its anti-Simon campaign a huge success. Nehru declared in his presidential address that we have now an open conspiracy to free this country from foreign rule, and you, comrade, and all our countrymen and countrywomen are invited to join it. Further, explained that liberation did not mean only throwing off the foreign yokes. He said, I must frankly confess that I am a socialist and a republican. भाई नेहरू जी ने खुद ही वो कन्फेस कर लिया था, वो क्या था? सोशलिस्ट और रिपब्लिकन। And am no believer in king or prince or in the order which produced the modern kings of industry, who gave greater power of the lives and fortune of men than even the kings of old, and whose methods are as predatory as those of the old feudal aristocracy. Spelling out the method of struggle, he said, any great movement for liberalization today must unnecessarily be a mass movement, and mass movement must essentially be peaceful except in times of organized revolt. The following major decisions were taken at the Lahore session. पहला क्या डिसीजन था भाई? द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज टू बी बॉयकॉटेड। पहली चीज़ तो यही बोल दी। ये सब पूछा गया है भाई, ठीक है ना, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो ये आप याद रखेंगे। अलग अलग स्टेट पीएससीज में यूपीएससी खुद पूछ रहा है भाई बार बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये पूरा यहाँ तक लेके ये पूरा बता दिया है आपको भाई, यहाँ तक के क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज टू बी बॉयकॉटेड, पहले तो ये बोला। कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस। थर्ड ये बोला, कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज ऑथोराइज टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वर आस्क्ड टू रिजाइन देयर सीट्स। ठीक है, जनवरी 26, 1930 वॉज फिक्स द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वराज डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। उन्होंने बोल दिया भाई स्वराज डे और इंडिपेंडेंस या फिर मनाने लगो। December 31st, 1929 at midnight on the banks of river Ravi, the newly adopted tricolor freedom was hosted by Jawaharlal Nehru amidst the slogan इनकलाब जिंदाबाद। December 31st, 1929 को पहला झंडा फहरा दिया गया था भाई आज़ादी का, ठीक है। अब जनवरी 26, 1930 में क्या हुआ था? द इंडिपेंडेंस प्लेज। Public meetings were organized all over the country, in the village and the towns, and the independence pledge was read out in local languages and national flag was hoisted. This pledge, which is supposed to have been drafted by Gandhiji, made the following points. It is an inalienable right of Indians to have freedom. The British government in India has not only deprived us from freedom and exploited us, but has also ruined us economically, politically, culturally, and spiritually. India must therefore serve the British condition and attain Purna Swaraj. है ना, sever the British connections and attain Purna Swaraj or complete independence. We are being economically ruined by high revenue restrictions of villages, industries with no substitution made, while customs, currency and exchange rates are manipulated to our disadvantage. No real political power are given, right of free association are denied to us, and all administrative
टैलेंट इन अस स्किल्ड कल्चरल, मतलब ठीक है यार, ये इतना लैंग्वेज ही लैंग्वेज, कल्चरली सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज टॉन, मतलब जो बुराई है नहीं की वजह से, स्पिरिचुअली कंपल्सरी डिसआर्मामेंट वी होल्ड इन इट्स क्राइम एंड मैन गॉड इज सबमिटेड ऑल, ठीक है, वी विल प्रिपेयर फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय विड्रॉइंग एज फार एज पॉसिबल ऑल वॉलंटियर एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड विल प्रिपेयर फॉर सिविल डिसोबीडियंस थ्रू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस थ्रू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बाय दिस एंड एंड इन दिस inhuman rule was assured, we will carry out the Congress instructions purpose to establishing पूर्ण स्वराज। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सॉल्ट सत्याग्रह एंड अदर सर्च, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।